Hello students, welcome to BSc final year physical chemistry lecture series. आज के lecture में we'll be discussing particle in a box problem. That's the simplest quantum mechanical problem क्योंकि एक translational motion को represent करेगा. उसके corresponding energy क्या होगा quantum mechanics में that we'll be knowing in this lecture. Normally एक quantum chemistry या quantum mechanics के problem का solve करने का तरीका क्या होता है? तो steps which we follow और हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था. फर्स्ट स्टेप इज राइट श्रोडिंगर इक्वेशन. राइट श्रोडिंगर इक्वेशन, देन अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, and applying boundary conditions, fulfilling boundary conditions, try to solve Schrodinger equation. And when you solve Schrodinger equation, we get two things: psi and its corresponding energy. And then using psi, derive all the informations. Extract information from psi. Now, particle in a box, we'll take the simplest example, and that is particle in a three-dimensional box. But before that, let's try to write Schrodinger equation in a more elaborate form, because normally we write Schrodinger equation as H operator psi equal to E psi. ये हमारा Schrodinger equation है in the eigenvalue equation form. And what is H operator? This is a Hamiltonian operator. कल के भी last lecture में भी हमने ये discuss किया था. Hamiltonian operator, which is sum total of kinetic energy operator and potential energy operator. In three dimension, for a single particle, kinetic energy operator, जो हमने कल derive किया था, that value was minus h square upon 8 pi square m del square. Laplacian operator हम कहते हैं del square, और del square is nothing but d square by del square in place of del square. Yeah, del square is nothing but d square by dx square plus d square by dy square plus d square by dz square. That is kinetic energy operator. And potential energy operator is simply the expression for potential energy. So अगर मैं ये वाला expression kinetic energy का इसमें डालूं operator का, तो final expression हो जाएगा हमारा minus h square upon 8 pi square m del square. That is kinetic energy operator. Potential energy operator is simply the expression for V. And then h psi, that is, this is h operator h psi equal to E psi. इसमें psi आपका आइगन फंक्शन है and E टोटल एनर्जी आपका आइगन वैल्यू है. इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें. So this you can write as minus h square on 8 pi square m del square psi को अंदर लेके जाओ plus B psi equal to E psi. And E psi को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, then you can write this as, or this you can also write as minus h square upon 8 pi square m del square psi. V psi को राइट हैंड साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा E minus B psi. ठीक है. और you can write this as del square psi equal to minus 8 pi square m. 8 pi square m h square को आप राइट हैंड साइड लेके गए अपॉन h स्क्वायर E minus B psi. और ये क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लेके आओ तो del square psi plus 8 pi square m upon h square E minus B psi equal to 0. You'll find this expression in most of the book. This is all different way to write Schrodinger equation. Or in some book they'll say that derivation of Schrodinger equation using the concept of operators. So this is the final expression for a
सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन और जो जिस पे कोई फोर्स काम कर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी आपका V है। अब इसको अप्लाई करते हैं फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम दैट इज पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। आपके सिलेबस में है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स और पूरा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम है कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स का है श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने के लिए आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना। श्रोडिंगर इक्वेशन इज H कैप psi इक्वल टू E psi। तो मुझे उसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना होगा। तो पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स को कैसे विजुलाइज करें कि मान लो पार्टिकल आपका along x मूव कर रहा है इन ए लेंथ बिटवीन 0 to L। तो ये आपका एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल जो इस बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है। बॉक्स के अंदर फ्री मूव करने का मतलब है कि बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और जब फोर्स नहीं लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, नेट फोर्स इज जीरो, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। मींस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की आपकी जीरो है, और बॉक्स के बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसे फिजिक्स के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करें कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पोटेंशियल एनर्जी आप ले लेंगे इन्फिनिटी। कहते हैं ना कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी मतलब वहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो बॉक्स के बाहर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आपकी इन्फिनिटी है, और बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव करने का मतलब है कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है। अब इस वाले सिस्टम का, अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए मुझे कि जब पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, ऐसा कोई रियल सिस्टम बताओ। तो केमिस्ट्री में उसका एग्जांपल आपको मिलेगा कि अगर मान लो आप ब्यूटाडाइन लेते हो। ब्यूटाडाइन इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट कैन मूव फ्रीली बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो पाई इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लो, वो पार्टिकल इस कार्बन से इस कार्बन तक में मूव कर रहा है। तो ये लेंथ हो गया, और इस लेंथ में आपका वो पार्टिकल दैट इज पार्टिकल इज पाई इलेक्ट्रॉन वो मूव कर पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, खासकर कंप्यूटर एग्जामिनेशन में। अब इस प्रॉब्लम को लेते हुए हम सारा प्रोसेस लें, स्टेप्स फॉलो करें। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने कहा था हर प्रॉब्लम का यूनिक होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा। क्योंकि 1 डायमेंशन में है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर for 1 dimension will be minus h square upon 8 pi square m, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस पे है तो आपका हो जाएगा d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। 3 डायमेंशन देखा था d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। चूंकि 1 डायमेंशन पे सिंपली d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, तो जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, बट वो वैल्यू कितनी है बॉक्स के अंदर, दैट इज जीरो। सो दिस इज सिंपली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये हैमिल्टन ऑपरेटर को जब साइड पे अप्लाई करेंगे तो आपका एनर्जी वैल्यू आएगा। तो फ्रॉम दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन इसको इसको मिला करके आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो एच ऑपरेटर हो गया, फिर साई इक्वल टू ई साई। सो दैट्स द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1D बॉक्स। और एमसीक्यूज में चूंकि क्वेश्चंस आपके इस साल एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा इसमें एक्सप्रेशन श्रोडिंगर इक्वेशन है 1D बॉक्स का। अब इसे सॉल्व करना है। बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगा हमारा, यहाँ बाउंड्री कंडीशन आपका है कि पार्टिकल इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाउंड्री पे नहीं होगा। मतलब जब x की वैल्यू जीरो होगी तो साई आपका जीरो होगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू l होगी तो भी आपका साई जीरो होगा। तो दैट्स द बाउंड्री कंडीशन। अब इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करके विल बी एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ दिस थोड़ा रीअरेंज फॉर्म लिख लें, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर
equal to minus 8 pi square me upon h square psi. In place of 8 pi square me upon h square, let's write k square. तो ये एक्सप्रेशन देखते ही मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें k स्क्वायर इज नथिंग बट 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर. तो अगर मुझे k की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो मैं उससे एनर्जी वैल्यू बता दूं. अब ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सिंपल सॉल्यूशन आप मैथ्स में देखोगे. सो इफ इट इज d स्क्वायर psi by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस k स्क्वायर psi का सिंपल equation will be the solution of above, the general solution कह ले, general solution of above differential equation is psi equal to a sin kx plus b cos kx. आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ बुक में देखोगे आपका साइन ऑफ कोसाइन के फॉर्म में होगा. आप चेक कर सकते हो कि क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है. लेट्स मैं रिवर्स कर देखता हूँ कि अगर मैं साई को डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, के कॉस के एक्स. सो इट विल बी ए के कॉस के एक्स. और कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस के साइन के एक्स. तो माइनस बी के साइन के एक्स. नाउ अगेन differentiate, so let's double differentiate this psi. So d square psi upon dx square. तो अगर इसको differentiate करो with respect to x, so cos kx का हो जाएगा minus k sin kx. So it will be minus a k square sin kx. और sin kx का that will be cos k cos kx. So it will be minus b k square cos kx. तो अगर मैं माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लूं, इट विल बी ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स. एंड ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इज नथिंग बट साइन, सो दिस इज नथिंग बट माइनस के स्क्वायर साइन. दस प्रूफ, मतलब मैंने उल्टा करके इसको लेकर के मैंने डबल डिफरेंशिएट किया, तो वी गॉट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मींस वी आर 100% now sure that this is the general solution of this particular differential equation. अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साई के लिए इसमें तीन अननोन है अभी आपके पास, ए बी एंड के. तो मुझे ए बी और के वैल्यू निकालना है. फॉर दैट विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. तो हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन था, पहला बाउंड्री कंडीशन था, सो द बाउंड्री कंडीशन जब x की वैल्यू 0 देन साई इज 0. सो पुट दैट व्हेन x इज 0 साई इज 0. तो x के वैल्यू 0 डाल दो तो साई तो 0 हो गया, ये साई 0 हो गया. a sin 0 is 0 plus b cos 0. Cos 0 is 1, means this. So what do you get? b is 0. मतलब इसमें आपका b की वैल्यू 0 हो गई. मीन्स फाइनल साई क्या आ गया हमारा, साई हो गया आपका रिड्यूसेस टू a sin kx. अब अप्लाई करते हैं दूसरा बाउंड्री कंडीशन. द सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज व्हेन x इज l साई इज 0. check it कि जब x का वैल्यू l है देन साई इज 0. अगेन पुट इनटू दिस साई 0, तो साई की वैल्यू 0 आ गई. 0 a साइन, जब x का वैल्यू l है तो a साइन के एल इज 0. हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 180 डिग्री, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज अगेन 0. तो इन जनरल साइन n पाई is 0, where n can have value 0, 1, 2, so on. तो यहां पे
ये जीरो होने के लिए आप कहेंगे KL की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू n पाई, पर यहां n जीरो से स्टार्ट ना करके आप n स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि जीरो लेने का मतलब है कि अगर मैंने n जीरो ले लिया तो ये साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो तो मतलब टोटल, अब ये इफ दिस इज जीरो तो आपका साई भी जीरो हो जाएगा, मींस एवरीवेयर साई विल बी जीरो, बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होगी, तो आप n जीरो नहीं लेंगे, n विल स्टार्ट विथ 1 2 3। सो अल्टीमेटली जब ये साई जीरो व्हेन x इज l, उस केस में KL, x की जो वैल्यू l, KL शुड बी इक्वल टू n पाई और n शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3, सो KL इज n पाई। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो दिस psi will be a sine, in place of k we can write n pi by l, in place of k, from this k is n pi by l and then x. That's the final solution. I am psi equal to, so we got the value for k from this, k is n pi by l, where n is 1 2 3 4, where n can have value 1 2 3 so on, integer. अब अभी भी एक चीज अननोन है, दैट इज a, so let's do that in the next page. So psi is a sine n pi by lx. अब a डिटरमिन करने के लिए हम तीसरा एक कंडीशन डालेंगे। इफ रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमारा कंडीशन था psi मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होगा, नॉर्मलाइज का मतलब ये होगा कि अगर psi देखो आप, ये रियल है, रियल फंक्शन है, तो आप सिंपली स्क्वायर करेंगे, जो कि 1D में है तो dx लेंगे, particle will be between 0 to L, so this will give you the total probability of finding the particle between 0 to L, तो कहीं ना कहीं तो particle होगा, तो normalize मतलब this should be equal to 1, so 0 to L psi square will be a square, a common है, a constant है आपका बाहर आ जाएगा, a square sin square n pi by lx dx equal to 1. now अब इस, ये तो सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा करके आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे एंड इफ यू अप्लाई द लिमिट, डू इट योरसेल्फ, यू विल फाइंड दैट दिस a comes out to be equal to under root 2 by l. So I leave that for you. आप इसे सिंपल सा सॉल्व कर देख चेक करो कि a आपका रूट 2 by l आ रहा है कि नहीं आ रहा, a is root 2 by l. So this is the normalization constant, ये जो हमारा a है, this a comes out to be root 2 by l. So you got the final expression psi for the n, in general psi n is under root 2 by l sin n pi by lx, where n can have value 1 2 3 4. So we got the expression for eigenfunction. Now if you remember, हमने जनरल स्टेप्स क्या बताया था, जनरल स्टेप्स हमने कहा था कि पहला काम है श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना, दैट वी डिड है। सेकेंड अप्लाई बाउंड्री कंडीशन हमने किया और हमने सॉल्व किया श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी देखा हमने कैसे सॉल्व किया। सॉल्व करने पे मुझे साई की वैल्यू आई और साथ में उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आई, तो यहां वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इफ यू रिमेंबर के स्क्वायर वाज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर, और k आपका n पाई बाई एल बी, तो दो एक्सप्रेशन, k square was replacement for 8 pi square me upon h square, and k is also n pi by l. तो इस इक्वेशन में k की वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर me upon h square, and this pi square cancel, so we get e equal to, we'll get e equal to n square
h square upon 8 ml square, and that's the eigenvalue. तो हमने श्रोडिंगर क्वेश्चन सॉल्व किया, और श्रोडिंगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन डाला, और वो करने के बाद हमारे पास आइगन फंक्शन आ गया और उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ गई, और यही हमारा इंटरेस्ट था. सो तो इक्वेशन हमारा क्या था? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू ई साई. ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन था. व्हेन वी सॉल्व दैट, सॉल्व करने के बाद हमारे साई आया अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई बाई एल एक्स. पर ये साई एन है, जो भी एन की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साई आएगा, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई फॉर द nth स्टेट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके कि साई क्या है, ई क्या है. अब एक एक करके हम सारी वैल्यू एनालाइज करते हैं. व्हेन n इज 1, सबसे छोटा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जब n का वैल्यू होगा 1, बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and then next value 2, 3, so on. When n is 1, psi 1 is under root 2 by L sine pi by Lx. n की वैल्यू हमने 1 डाल दी, और उसकी corresponding energy, that is E1, is n की जगह 1 डाला, is h square on 8 ml square. So that's the lowest energy state. और उस लोएस्ट एनर्जी स्टेट, अगर आप याद कीजिए लास्ट लेक्चर, तो ने पहला कहा था कि द स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम इज डिफाइंड बाय वेव फंक्शन. तो जो फिजिकल सिस्टम जब लोएस्ट एनर्जी में है तो उसकी एनर्जी कितनी है? एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर. और ये जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स है वो किस तरह की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दिस इज नथिंग बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी. तो एक पार्टिकल 1D बॉक्स में ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, उसके और फ्री है वो, उसका कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. और उस स्टेट को रिप्रेजेंट आप इस फंक्शन से कर रहे हैं. अब अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट दिस फंक्शन with respect to the x value, कि भाई x आपका 0 to L पे, how this function vary when we change the position of curve. तो जब आप x, ये psi है, ये psi की वैल्यू है बिटवीन x एंड L. अब जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो साइन 0 विल बी 0. तो मान लो ये 0 है, ये मान लो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव की बात कर रहे हो आप, तो ये मैं डॉटेड ले रहा हूं. सो एक्स एक्सिस, जब हमारा x की वैल्यू L/2 है, मीन सेंटर की मैं बात करूं, जब x की वैल्यू L/2 है तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 हो जाएगा. व्हेन x is L/2, व्हेन यू पुट x is equal to L/2, psi 1 will be under root 2 by L sin pi upon L L/2. This L and L cancel, so pi by 2. Sin pi by 2 is 1. That's the maximum value of sine, that is sin 90 degree. So this is maximum root 2 by L. Means जब x आपका L/2 होगा तो ये maximum value आएगी, और यहाँ 0 होगा. जब x आप L भी लेंगे तो sin pi will be 0. So that's how the psi will vary when you vary the x. Means psi की maximum value आपका L/2 पे है, और कहीं भी आपकी psi की वैल्यू 0 नहीं हो रही है एक्सेप्ट दैट बाउंड्री कंडीशन. और जब इस स्टेट में तो उसकी एनर्जी कितनी है? एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. ये psi 1 है. अब अगर आप psi 2 लो, psi 2
मीन्स n की वैल्यू 2 लोगे, जब n 2 होगा तो साई 2 होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई एल साइन 2 पाई बाई एल एक्स, और corresponding energy E2 will be n square 2 square, that is 4h square upon 8 ml square. Now let's plot it. अब अगर मैं इसे प्लॉट करूं इस साई को बिटवीन 0 टू L, तो जब x 0 होगा तो नो डाउट साई विल बी 0. जब x की वैल्यू, जब इस केस में x की वैल्यू आप L/2 लो, तो जब x की वैल्यू L/2 डालोगे तो साई 2 विल बी अंडर रूट 2 बाई L साइन 2 पाई बाई L L/2. तो L कैंसिल, 2 कैंसिल, दिस विल साइन पाई, एंड साइन पाई विल बी 0. मतलब ये L/2 पे L/2 पे 0 है. जब आप x की वैल्यू L/4 डालोगे तो साई 2 मिलेगा आपको अंडर रूट 2 बाई L साइन 2 पाई बाई L L/4. So L/4 लोगे तो ये 2 and 4, this will be pi by 2. So this will be nothing but under root 2 by L sine pi by 2. This will be maximum value under root 2 by L. मतलब L/4 या L/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली अगर आप L3 3L/4 डालोगे, we'll put L equal to 3L/4, चेक कर लेना, the side 2 will be minus under root 2 by L. वो -1 आएगा. So when you plot this, this is how the plot will look like. This is the variation of psi 2 with x. x वेरी करेगा. L/4 पे मैक्सिमम, L by mid पे आपका 0. This is nothing but your node. जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. अब साई लास्ट लेक्चर में याद है कि हमने प्रोबेबिलिटी के लिए इसको क्या किया था, स्क्वायर किया था. सो व्हेन यू स्क्वायर दिस, जैसे इस केस में अगर आप स्क्वायर करते हो, प्लॉट करते हो, तो आपका कुछ नहीं होगा, थोड़ा बस ये स्टीप हो जाएगा. दिस विल बी साई 1. इन साई 1 की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज एट द सेंटर. इसमें अगर आप प्लॉट करते हो और स्क्वायर करके प्लॉट करते हो, तो आपका जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज हाउ इट विल मूव लाइक. दिस इज द प्लॉट ऑफ साई 2 का स्क्वायर. दिस इज द प्लॉट ऑफ साई 1 का स्क्वायर. दिस इज साई 1 का स्क्वायर. दिस इज प्रोबेबिलिटी. दिस इज वेव फंक्शन. वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. जब आप स्क्वायर करते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है. स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद. बट इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा. तो मतलब ग्राउंड स्टेट में, अब देखो ये ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी. दिस इज लोएस्ट एनर्जी. लोएस्ट एनर्जी में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं. लोएस्ट एनर्जी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे, तो कहेंगे L/2 पे. और नेक्स्ट मींस जब n की वैल्यू 2 होगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, L/4 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, और 3L/4 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी. L/2 पे आपका 0 होगा. दिस मींस दिस इज नथिंग बट योर नोड. अब आप ये चेक करके देख लो कि जब आप साई 3 पे जाओगे, साई 3 पे जाओगे, और दूसरी बात ये कभी कभी एनर्जी डिफरेंस भी आता है कि E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा. सो E2 माइनस E1 will be nothing but 4h square upon 8 ml square minus h square upon 8 ml square. So 4h square upon 8 ml square minus h square upon 8 ml square. And this is nothing but 3h square upon 8 ml square. So you can generalize this. कि अगर similarly you can check it by putting the equation also, कि अगर तुम psi 3 का प्लॉट करोगे तो psi 3 का प्लॉट कुछ ऐसा आएगा. psi 3 के प्लॉट में आपके जैसे psi 2 में 1 नोड आया, psi 0 में कोई भी नोड नहीं था, psi 3 में 2 नोड आएंगे. एंड दिस इज हाउ द प्लॉट विल लुक लाइक. दिस इज प्लॉट ऑफ psi 3. 2 नोड्स हो जाएंगे, 2 नोड्स. मतलब इन जनरल देयर आर n-1 nodes in nth state. मींस psi 3 में थर्ड, psi 3
में आपका 2 नोड्स है, साइड 2 में आपके पास 1 नोड था, साइड 2 में 2 - 1 1 नोड था। दूसरा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n+1 state and nth state will be 2n + 1 h² upon 8 ml square। जैसे पिछला देखा था आपने कि E2 - E1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालो तो आपका कितना आएगा, तो 3h² upon 8 ml square। फाइन। जब व्हेन यू स्क्वायर दिस साइड 3 को, तो आपके पास 3 मैक्सिमा आएगा बिटवीन 0 to n एट इक्विडिस्टेंट, एंड ये आपके नोड्स हो जाएगी। बाउंड्री कंडीशन को नोड्स नहीं कहोगे, उसके बीच में नोड्स जहां पे प्रोबेबिलिटी इज नियरली जीरो, रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी इज जीरो, नियरली जीरो। So this is the complete information about particle in a 1D box। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने करा दिया।